Namaskar, I am Dr. Poonam Goyal, Chairperson of Safe Motherhood Committee. We have prepared a PPH drill on the basis of new guidelines which have come in October 2025 given by WHO and FIGO. The drill has been prepared by the staff and doctors of Panchsheel Hospital, Delhi. Any woman who is birthing can have episode of postpartum hemorrhage, so be prepared and keep your infrastructure ready to deal with such emergencies. So let us watch the drill. Thank you. Hello, so today we are going to create a demo scene of a normal vaginal delivery in our labor room. This is a patient who is third gravida with previous two normal vaginal deliveries and no chronic history, no complications in previous pregnancy and during the ANC visit. And the patient is delivered normally. After the delivery, after 15 minutes, patient had episode of bleeding and the uterus was soft, not well contracted. The bleeding was around 350 ml with the vitals, BP and pulse deteriorating. So the patient was labeled as a case of primary PPH and was managed accordingly by the senior obstetrician team. Yes. सुनीता जी Push. जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगाओ जोर लगा 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 जोर लगा 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 जी जोर लगाओ जोर लगाओ लगा 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 Yes. थोड़ा सा पुश करो पुश करो पुश करो थोड़ा सा और yes baby delivered sister keep the baby warm cover start breastfeeding delayed cord clamping is done over 1 to 3 minutes. Now sister जी मैम I am removing the placenta by control cord traction and continuous uterine massage after the delivery of placenta. Please check for the completeness of the जी मैम membranes on the fetal side. मैडम both side is completed. Okay, sister, please take the vitals of the patient. जी मैम And Sandhya sister, you please give the 10 unit intramuscular oxytocin to the patient. I am doing the continuous uterine massage. Sister ji, please keep the baby warm. Yes, ma'am. And breastfeeding. Sunita, you are feeling okay? ठीक है? Okay, madam. Sister, आप fluid देखिए ठीक से चल रहा है हेमा sister. मैम BP 180 है पल्स 90 Pulse 90. जी मैम So BP is ठीक चल रहा है। 180 and pulse is 90. So our shock index is less Less than than 1. one. So patient is okay, doing fine. Her uterus is well contracted and blood loss is around 150 ml, which is normal within normal limits. So sister Sheena, जी मैम please fill all the details of vitals in the postpartum monitoring form. जी मैम एक बार सर्वाइकल और वजाइनल टीयर्स के लिए भी देख लेते हैं सिस्टर. जी मैम Cervix flow is looking okay. There is no active bleeding. Vagina is also looking fine. No bleed. Uterus is well contracted. Bleeding is average. There are no tears. Patient vitals are stable. संध्या सिस्टर एंड हेमा सिस्टर, तो अभी मैं और शीना सिस्टर राउंड लेकर आ जाते हैं. आप बेबी एंड मदर दोनों का ध्यान रखिए. आप यहाँ मदर एंड पे रहिए और आप उधर बेबी वाले एंड पे रहिए. ठीक है, कीप द बेबी वार्म. ठीक है. सुनीता जी मैडम, डिलीवरी हो गई है, वेजाइनल डिलीवरी हो गई है आपकी. ठीक है, बेबी ठीक है आपका, आप भी ठीक हो, ब्लीडिंग भी नॉर्मल है, नीचे टाँके भी नहीं आए हैं. ठीक है, टेक केयर. अभी थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट कर लेंगे. ओके 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 ओके. ये तो ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, मैडम को बुला लो जल्दी. हेलो भानु मैम, जल्दी आ जाइए, पेशेंट ब्लीडिंग कर रहा है. क्या हो गया संजय सिस्टर क्या हो गया पेशेंट ज्यादा ब्लीड कर रहे हैं जल्दी हाँ? पेशेंट ज्यादा bleed- अरे मैं ही तो Oh my God, ये तो clots pass कर रही है. हाँ, Uterus is bleed कर रहे also blood loss is also around 320 ml. Sheena sister, please take the vitals of the patient immediately. Hema sister, please Yes, call ma'am. Dr. Gangotri ma'am and Dr. Mini. Yes ma'am. संध्या sister, आप 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन फिर से रेडी कीजिए. Okay ma'am. मैम BP 90 60 है पल्स 110 हाँ जी क्या हुआ? मैम ये पेशेंट अभी 15 मिनट्स बैक डिलीवर हुआ था. शी वॉज थर्ड ग्रेविडा. बेबी इज हेल्दी. ब्लड लॉस वॉज नॉर्मल.
लेकिन अभी आफ्टर 15 मिनट संध्या सिस्टर कॉल्ड मी, अभी यूट्रस में टोन नहीं है, यूट्रस इज सॉफ्ट and the blood loss is around 320 ml. Now her vitals are also deteriorating. Her BP is 90/60, pulse is 110 per minute, and shock index is more than 1, and respiratory rate is 20 per minute. So ma'am, please help. ये तो देखने से लगता है कि पीपीएच हो Yes, रहा है ma'am. इसको करके। अब आप थोड़ा सा साइड में जाओ, मैं Yes देखती ma'am. हूँ। Yes ma'am. और आप तब तक उसकी कहते हैं पेशेंट के रिलेटिव को बताना है, Yes ma'am. ठीक है? Yes ma'am. और ट्राई मसाज सिस्टर सीनो जी मैम। आप पेशेंट का वाइटल चेक करिए, पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट चेक करिए, ऑक्सीजन मास्क ऐड कर दो, जी मैम। और एवरी 15 मिनट्स वाइटल लेके आप पोस्टमार्टम फॉर्म भर दीजिए। जी मैम। सुनीता जी मास्क में है। देखिए आप सुनीता के साथ हैं, सुनीता के हस्बैंड हैं आप, और आप कौन है उनके? बहन, लड़की। अच्छा, देखिए सुनीता की अभी डिलीवरी हुई थी, वेजाइनल डिलीवरी हुई है, बच्चा नॉर्मल आ गया था, ठीक है, और बेबी भी ठीक है, और पेशेंट भी ठीक थी सुनीता अभी तक, लेकिन डिलीवरी के 15-20 मिनट बाद हमें ऐसा लगा कि ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि बच्चेदानी जो है वो सुकड़ नहीं पा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से जो बीपी वगैरह है वो भी उसका ठीक नहीं रह रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको मैनेज करने की, उसको ठीक करने की, लेकिन हो सकता है आप लोगों को ब्लड अरेंज करना पड़े, क्योंकि जब इतनी ब्लीडिंग होती है तो खून की कमी हो जाती है, इसलिए खून का भी अरेंजमेंट करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ एक और बात है कि भाई रेफ़र भी करना पड़ सकता है पेशेंट को जीटीबी में या बड़े अस्पताल में, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं इस अस्पताल में नहीं हैं। मान लो पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ब्लीडिंग क्यों बंद नहीं हो रही, उसकी सुविधा यहाँ नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें उसे बड़े अस्पताल में भी भेजना पड़ सकता है। तो ये दोनों बातें अपने माइंड में लेके चलिए, और हमने आपको अच्छे से बताई हैं। इसके लिए थोड़ा सा कंसेंट पे साइन करना पड़ेगा, तो उस पर साइन या अंगूठा जो भी है वो आप लगा सकते हैं। और अगर रेफ़र करेंगे तो हमारा डॉक्टर आपके साथ जाएगा, वो सब चलो मैं आपको बता दूँगी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो, और अभी फ़िलहाल हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। मैम BP 190/60 है, पल्स 112, SpO2 97, रेस्पिरेशन रेट है 19। हाँ, ये तो काफी हो गया, शॉर्ट लिव टेक्स मोर देन जी 1। मैम। सिस्टर हेमा, आप इसको वाइट बोर्ड कैमरा लगाओ और सैंपल कलेक्ट करो, क्रॉस मैच, CBC, इलेक्ट्रिक AFT, कोगुलेशन प्रोफाइल, और इमीडिएट भेजो। सिस्टर संध्या, आप पेशेंट को 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन दीजिए इंटरमस्कुलर, एंड 800 माइक्रोग्राम मीजोप्रॉस सबलिंगुअली दे दीजिए, और इंजेक्शन ट्रेनेक्सा 1 ग्राम IV ओवर 10 मिनट्स दे दीजिए। सुनीता जी मुंह खोलो, जीभ के नीचे टैबलेट देख ले मेरी, ठीक है, चबाना नहीं है। यूट्रस अभी भी सॉफ्ट है। डॉक्टर मिनी, कैथेटर दे दीजिए मुझे कैथेटराइजेशन के लिए। ओके सिस्टर, कैथेटर दे दीजिएगा, 16 नंबर कैथेटर, यूरोबैग, और इन्फ्लेट करने के लिए नॉर्मल स्ले। ओके बलून बना दूँ। ओके बलून बन गया। ओके ठीक है, यूरिन आ रहा है। हाँ, मैं इसको मसाज करके देखती हूँ, ब्लीडिंग चेक कर रही हूँ। और डॉक्टर मिनी, आप प्लेसेंटा चेक कर दीजिए, रीचेक कर दीजिए। ओके मैम। यस, दिस लेयर वाज ओके। ओके ये भी लेयर ठीक है मैम, ये प्लेसेंटा कंप्लीटेड है। डॉक्टर मिनी इधर आइए, एक सर्विक्स एक्सप्लोर कर लेते हैं, सर्विक्स हो जाए ना। ओके मैम सर। हाँ, आइए सर्विक्स एक्सप्लोर कर देते हैं। ये लिप पकड़ लिया, ये अपर लिप, ठीक है, ये ओके, ये हाँ, लोअर लिप, बिल्कुल ठीक ओके, है, सर्विक्स ये इज भी ओके। है, तो हाँ, कोई टेयर नहीं है, ओके। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मिनी, आप बैलून टैम्पोनेट प्रिपेयर करो, मीनवाइल मैं यूटेन कंप्रेशन देती हूँ। ओके मैम। सुनीता जी, मैं अभी आपकी क्या कहते हैं, ये आपको ब्लीडिंग हो रही है ना, तो मैं आपका क्या कहते हैं बच्चेदानी के अंदर हाथ डालूंगी, थोड़ा सा आपको सहयोग देना होगा, ठीक है। हाँ, यूबीटी रेडी मैम। सलाइन से कनेक्ट कर दीजिए।
थोड़ा इंसर्ट कर दो मैम, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ठीक है, मैंने बस। मैं अभी नॉर्मल स्लिंग कनेक्ट करूँगी, ठीक है। ओके मैम, फास्ट कर दीजिए। ओके। Pulse. Pulse 118 मैडम, BP 84/52, respiration 24. Oh, patient is going in shock. ब्लीडिंग अभी भी है। Shock index more than 1. पेशेंट बैलून टेम्पोनेट के बाद पहले से बेटर है, लेकिन हम इसको NSEG के साथ टर्शरी केयर सेंटर रेफ़र करेंगे। देखिए अभी मैं आपको आई थी बताने कि पेशेंट की क्या सिचुएशन है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, पर मजबूरन हमें पेशेंट को रेफ़र करना पड़ रहा है। ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हो रही है, BP गिरता ही चला जा रहा है। तो बेहतर है कि हम उसको बड़े अस्पताल में भेज दें, ना कि हम ही करते रहें जो, ठीक है। पेशेंट की जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माँ और बच्चा दोनों साथ जाएंगे। हम अपनी एम्बुलेंस में पेशेंट को GTB तक भेजेंगे। साथ में हमारे एक RMO डॉक्टर जाएंगे, रास्ते में कोई भी दिक्कत होती है वो देखेंगे, और वहाँ पर पूरा पेशेंट को डॉक्टर के पास यूनिट में गायनी की हैंड ओवर करके आएंगे, बेड जब सब मिल जाएगा। और साथ ही हम पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो पेशेंट को एक ऐसे गारमेंट में हम लपेट के भेजते हैं जिससे पेशेंट का जो BP है वो मेंटेन रहे और फर्दर ना गिरे, ठीक है। तो जो BP है, पल्स है, वो जितना गिर गया है या जितने पे है उसको मेंटेन करके भेजते हैं, ठीक है। तो एम्बुलेंस में कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और जब पेशेंट वहाँ पूरा सेटल हो जाएगा उसके बाद ही हमारे डॉक्टर एम्बुलेंस में वापस आएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज रहे हैं जो टर्शरी सेंटर होता है, यहाँ से बड़ा होता है। यहाँ ब्लड बैंक, बेहोशी वाला डॉक्टर 24 घंटे रहता है, सब प्रकार की सुविधाएँ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पेशेंट आपका प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो राइट टाइम है ये मैनेज करने के लिए और भेजने के लिए, तो अभी रेफ़र करना ज़रूरी है, ठीक है। And meanwhile, somebody prepare for NSAG. ओके मैम। Let's put NSAG. सिस्टर संध्या, NSAG रेडी करो। Okay मैम। Patient is ready for NSAG. NSAG is now fully open. All the segments 1, 2, 3, 4, and this ball to press the uterus, and this is segment 6. So all are open. So first we will tie the segment 1. Both the people should tie the segment simultaneously. So, and then you do a snap test. Yes, so this is properly tied. Then segment 2. Simultaneously somebody see the BP of the patient. So snap. Then segment 3. मैम, BP 80/50, Okay. pulse 120, respiration rate 24. Okay. So now the patient's knee is properly flexing. So that is the main thing. So that we can put the patient again in lithotomy position and do any kind of procedure we want. Then segment 4. Segment 4 is pelvic. Then to press the uterus, we need to put this ball on the uterus and then close the segment 6. So now, is the BP improving? मैम, BP 90/60, pulse 118. Okay. So patient improving. जी ma'am. Something is improving. Let us wait for some time. And now meanwhile, start the referral protocol. Okay. Call the people at GTB hospital for referring the patient there. So now the patient has been shifted, suppose the patient has been shifted to the tertiary care center, and now we are seeing that her BP is now 110, her pulse is now 100. So that means our patient is recovering even without any doing the surgical procedure. So how do we open and check? So we first open the segment 1. Segment 1. We wait for
20 to 30 minutes to see whether her pulse is again deteriorating and her BP is again deteriorating and problems are occurring. Then we again tie this. If it is not happening, then after half an hour we go for the opening of this second. Then again wait for 20 minutes. Then this again wait for 20 minutes. And if patient is still going every time you are opening and this segment and your patient is again going into shock, then we need to do these procedures. We will keep these three tied and patient is given anesthesia, and then exploration and everything is done with the partial anesthesia on. So the referral protocol has that we send the patient in one anesthesia, and the facility where the patient is being received, they will give you one anesthesia in return, and patient can remain in anesthesia for 48 hours. So now there is a way to fold this anesthesia. You don't do like this. Your velcro should not be active. This one is going here. So there is no velcro here. This will lie there. When you are opening, you don't have to push every time. So okay, this is the way to fold. You don't do like this, okay? If you do like this, every time when you are putting, you will have to go like this. So this goes like this, okay? This goes, ये तो चलो बाद में. Number should be in and this Yes. plain part should be up. Out. ऐसे ऐसे ऐसे. So there is one bag. We have one bag also to keep this. Then you put it in the bag. Okay. So that is the way to fold it.